Good morning, everyone. I request डॉक्टर्स प्रेयर्स के लिए सब लोग डॉक्टर्स प्रेयर के लिए प्लीज खड़े हो जाएं. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्. And now I would like to invite Dr. P.C. Shahi to introduce our speaker and this session as well. Good morning, respected doctors and colleagues. On behalf of the GP Association, Gorakhpur, I warmly welcome you all to this 14th CME session. Today's topic, low back pain, of physician perspective, is of great clinical importance. We are privileged to have with us Dr. Santosh Kumar Tiwari, an esteemed MD, FIPM, and a highly regarded interventional pain specialist. Dr. Tiwari brings years of expertise in pain management and has been instrumental in transforming patient care through advanced interventions. Following the talk, we will have a brief quiz contest on the topic to reinforce our understanding. And now, without further ado, let's invite Dr. Tiwari to take the stage. Please join me in welcoming him with a big round of applause. Thank you. Good morning, everyone. Let me introduce myself. I am Dr. Santosh Kumar Tiwari, a practicing anesthesiologist and pain intervention specialist, practicing in Gorakhpur since 20 years. Today, I have got the privilege to share my experiences of basic pain management about low backache. The topic is low backache. Let us first define what is low backache. Low back pain is defined as pain and discomfort localized below the costal margin and above the inferior gluteal folds with or without leg pain. It is the boundary, below costal line and above the gluteal folds, that is low back pain. It may be associated with leg pain or may be localized in the waist area only. Classification of low back pain. There are three types we can classify on the basis of duration. If it is persisting for less than 6 weeks, it is called acute low back pain. Subacute if it is between 6 to 12 weeks, and more than 12 weeks it is chronic low back pain. This classification is important because the treatment varies. For acute pain, we have different basket of drugs, and for chronic pain, we have different mechanism and different approaches. Actually, chronic pain, if a pain goes into a chronic stage, three things change in the neural pathway, pain carrying pathway. One is central sensitization. Central sensitization means the nerve carrying the pain sensation remembers the stimulus. Even if there is no stimulus after some time, it keeps on carrying the pain sensation. This is called central sensitization, and then it behaves like a neuropathic pain. Another is recruitment. Recruitment means if a nerve is carrying pain sensation for a long time, the adjacent nerves also sympathize with it and they are recruited. They also start carrying pain sensation. So the patient starts feeling pain in a wider area and to a greater extent. Intensity is increased and the area is increased. So this is called allodynia we call it. Therefore, this classification is important. As soon as the patient comes to us, we should ask in the history for how long you are feeling the pain and how intense it is. One thing we must remember, all the pains of low backache, all the pains of lower back are not due to prolapse disc. होता क्या है, कोई पेशेंट आया हमारे पास, डिस्क प्रोलैप्स होगा, रेस्ट करो, हार्ट बेड पे सो जाओ, बेल्ट लगा लो, दवा खा लो, ठीक हो जाएगा. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक बेड रेस्ट दे देते हैं. That concept is no longer valid. There are so many pain generators in the back. Let us try to find out. We can have a look on the anatomy. This is the, कोई pointer है क्या? ये? This is the vertebral body, this is the spinal canal,
spinous process, lateral transverse process, and this is a facet joint. Facet joint is one important pain generator. Seeing from the side, this is the intervertebral disc in between two vertebrae, and this is the intervertebral foramen from where the nerve roots exit. Next important joint in the lower back is this sacroiliac joint. This is the sacrum, this is the ilium, and this is a shallow joint called sacroiliac joint. This is also very important pain generator, like in the form of sacroiliitis. Then this is the disc. We all know the central part is gelatin-like, gel-like, semi-solid, or what we call nucleus pulposus, and the peripheral part is the annulofibrous ring-like structure. This is little thicker and stiffer. So we can summarize the pain generators in the spine. Facet joint arthropathy. This is a very common condition in middle-aged and elderly patients, and is a degenerative condition like osteoarthrosis of the facet joint itself. Then lumbar canal stenosis is another degenerative cause. Lumbar canal stenosis, posterior longitudinal ligament. Here is the posterior longitudinal ligament, PLL, and ligamentum flavum. From here, they are thickened over a period of time in aging process, and that causes narrowing of this vertebral canal, and the patient presents with neurogenic claudication. पेशेंट बोलता है साहब आधा किलोमीटर चलते हैं एकदम पैर लगता है फट जाएगा, थोड़ी देर बैठते हैं आराम मिल जाता है. दैट इज न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन, एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज वर्टिब्रल कैनाल स्टेनोसिस. Then sacroiliac joint, sacroiliitis, that may be due to degenerative disease or ankylosing spondylitis or some other inflammatory processes. Then pyriformis syndrome. हम बैक पॉकेट में वॉलेट रखते हैं, देर तक बैठ के काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, उससे क्या होता है पायरिफॉर्मिस में स्मॉल ट्रॉमा होता है, छोटा रिपीटेड ट्रॉमा, और वो इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसके नीचे से सियाटिक नर्व पास करती है. हिप जॉइंट के ऊपर जो पायरिफॉर्मिस मसल है उसके बीनीथ ये सियाटिक नर्व पास करती है. सो इट प्रोड्यूसेस सियाटिका लाइक पेन along the course of sciatic nerve. Then internal disc disruption. इंटरनल डिस्क डिसरप्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है. ये यंग एज में लो बैक एक जो होता है उसमें मोस्ट लाइकली कोई वो डिजेनरेटिव डिजीज़ वैसा नहीं होता है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन डिस्क प्रोलैप्स बहुत कॉमन नहीं है. लेकिन डिस्क प्रोलैप्स के पहले क्या होता है, डिजेनरेटिव जो प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पेशली स्मोकर्स में और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लोग हैं उनमें, ये डिहाइड्रेट होता है. डिस्क जो है ये डिस्क में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है. डिहाइड्रेशन की वजह से ये स्टिफ हो जाता है. एनुलर पार्ट जो है वो स्टिफर होने लगता है, और स्टिफ होने की वजह से और माइक्रो ट्रॉमा की वजह से उसमें क्रैक्स आते हैं, छोटे क्रैक्स आते हैं, और उन क्रैक्स में फिर सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है. सिंपैथेटिक यहाँ पे हमारा वाइट रमी कम्युनिकेंस है चारों तरफ से, वो उसमें इनर्वेट करता है और उसकी वजह से एक वेग पेन बैक में हमेशा बना रहता है. ये नीचे रेडिएट नहीं होता है, लेग में नहीं जाता है जनरली, लेकिन लो बैक स्टिफनेस ये सब होता है. ज़्यादा देर तक बैठ गए, ज़्यादा देर तक ड्राइव कर दिया, बाइक चला दिया, तो यंग एज में ये बहुत कॉमन कॉज है IDD, इंटरनल डिस्क डिसरप्शन. सो दूसरा इसका रीज़न ये भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे डिस्क के डिजेनरेशन को प्रमोट करता है. एक्चुअली ये एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है और न्यूट्रिशन अपना लेता है सराउंडिंग से. ये अपने जो पंप होता है, हम चलते हैं जब, तो वो पंप होता है, स्पंज लाइक उसका मूवमेंट होता है और वो सक करता है न्यूट्रिशन अपना CSF से और सराउंडिंग्स टिश्यूज़ से. तो अगर सेडेंट्री हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ होने लगती है. यही चीज़ होता है अगर हम बेड रेस्ट लंबे टाइम के लिए सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, तो अगेन न्यूट्रिशन इज़ कंप्रोमाइज्ड. सो अनदर पेन जनरेटर इज डिस्क बल्ज, herniation or prolapse. These three terms are actually different. Disc bulge is different, herniation is different and prolapse is different. Disc bulge का मतलब ये है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे बल्ज हो गया, ये जो लाइन है ये ऐसे कन्वेक्सिटी इधर आ गई, लेकिन सब कुछ इंटैक्ट है. उसका जेल लाइक सब्सटेंस भी जो सेंट्रल पार्ट है वो भी इंटैक्ट है, एनुलर पार्ट भी इंटैक्ट है. तो ये सिंपली बल्ज होता है, ये कुछ नहीं करता है, बस खाली इसको नैरो कर देगा और क्लाउडिकेशन वाला पेन स्टार्ट होगा. दूसरा होता है
डिस्क हर्निएशन, हर्निएशन में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें क्रैक हुआ और इसमें से जेल आया, लेकिन अभी भी बाहर नहीं आया क्योंकि एनुलर टियर नहीं है, तो वो हर्निएशन जैसा होता है, एक हर्निया लाइक वो बल्जिंग बनाता है। और तीसरा होता है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब ये एनुलर टियर हो गया, ये एनुलर टियर हो गया, पूरा ऐसे टियर हो जाएगा यहाँ से, और टियर होके वो जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो बाहर आ जाता है, और वो जाके जो एग्जैक्टिंग नर्व रूट है उसको इरिटेट करता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, तो इरिटेट करता है और उससे रेडिकुलर पेन और पूरा वो रेडिएट करता है पेन लेग की तरफ। सो दीज आर द पेन जनरेटर्स पॉसिबल इन द लोअर बैक एरिया. We should find out where is the pain generator, and that we can find with the history, with examination, and then with some investigations. All the patients don't require MRI actually. History can elicit many things itself. So while taking history, duration is important. Why important? We have discussed. Radiation is important. Radiation है मतलब कहीं नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट है. अगर रेडिएशन नहीं है तो आसपास मसल हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं. What is the quality of pain? Whether it is dull aching pain or sharp shooting pain or stabbing pain or something, the patient will himself tell many things. डॉक्टर साहब लागता छेदता, छेदता, बेधता, तमाम भोजपुरी में वर्ड्स हैं, छेदता, टीसता, अंगरता, हाँ, इस तरह के वर्ड्स हैं. बथता, बथता मतलब डल एकिंग. हाँ, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह का, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पेन एंड व्हाट इज़ द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट इसलिए है जानना क्योंकि कहीं एलोडाइनिया तो नहीं है इसको. ये देखने के लिए क्रॉनिक पेन है, बहुत दिन से है, तो हम असेस करते हैं कि जितना स्टिमुलस है कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं ये परसीव कर रहा है, परसेप्शन कहीं बहुत एनहांस्ड तो नहीं है, इसका एग्रावेटेड तो नहीं बता रहा है. तो एक्चुअली बता रहा है तो वो जानबूझ के नहीं बता रहा है, उसको है एग्रावेटेड परसेप्शन होता है एक्चुअली, वही एलोडाइनिया की वजह से, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन की वजह से, रिक्रूटमेंट की वजह से. तो इसको असेस करना इंपॉर्टेंट है. देन कम्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ये सब जो रूटीनली हम करते हैं. इंस्पेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं है वहाँ, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, पैल्पेशन से कोई टेम्परेचर रेज नहीं है, ये सब भी देखना ज़रूरी है. हम खाली हिस्ट्री लेके दवा लिखना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड. पेशेंट का बाकायदा उठा के उसको बोले कहाँ पेन होता है, पिन पॉइंट करके बताओ. कई बार वो होता है कि बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये भी आपके डायग्नोसिस में कैच पॉइंट होता है. बोलेगा पूरे इधर बटक में दर्द हो रहा है, आप बोलेंगे पिन पॉइंट करो, बोले नहीं साहब ये सब हो रहा है, तो वो वेग पेन बता रहा है. तो ये आपके डायग्नोसिस में एक कैच पॉइंट हो सकता है. और पिन पॉइंट बता रहा है वो भी एक कैच पॉइंट हो सकता है कि डर्मेटोमल एरिया क्या है. तो रेंज ऑफ मूवमेंट, वेदर देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और मोटर टेस्टिंग. मोटर टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मोटर टेस्टिंग, अगर मोटर लॉस है तो आपका काम ख़त्म, पेन इंटरवेंशन का काम ख़त्म, आप उसको तुरंत सर्जरी को रेफर करिए. दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन. मोटर अगर वीकनेस है तो अब आप इंटरवेंशन करके, कंजर्वेटिव करके कुछ नहीं कर सकते, उसको डिकम्प्रेशन करना है, उसको सर्जरी करनी है. सेंसरी लॉस है तो भी कुछ केसेस में करनी पड़ सकती है. तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन एंड यू कैन रेफर द पेशेंट टू द न्यूरोसर्जन. देन सम स्पेशल टेस्ट आर देयर. SLR सब जानते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, फेबर्स टेस्ट, फैसेट लोडिंग टेस्ट, फ्रीबर्ग्स टेस्ट. इसके कुछ फोटोज़ हैं. दिस इज द डर्मेटोमल एरिया, ये बाद में कर लेंगे. दिस इज SLR टेस्ट. SLR टेस्ट इज पॉजिटिव इफ देर इज इरिटेशन ऑफ द रूट ऑफ एनी नर्व, it is enhanced, the pain is increased on raising the leg straight. Then this is the Faber's test. Faber's test is specific for sacroiliitis. इसमें एक जो हेल्दी पैर है वो सीधा रहेगा, जो अफेक्टेड लेग है उसको हम मोड़ के अपोजिट नी पे रखते हैं, एक तरफ से इससे स्टेबलाइज करते हैं पेल्विस को, पेशेंट के पेल्विस को एग्जामिनर स्टेबलाइज करता है और नी को प्रेस करते हैं नीचे की तरफ. तो दिस विल इंक्रीज द पेन इन द बटक एरिया, बटक और अराउंड द हिप जॉइंट, ये पेन को बढ़ाता है. तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ सैक्रोइलिटिस. फैसेट लोडिंग टेस्ट, ये फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के लिए है. पेशेंट अगर बैकवर्ड बेंड करेगा तो इसमें बढ़ जाता है पेन. फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में पेन बढ़ जाता है, जबकि डिस्क प्रोलैप्स में बैकवर्ड पे घट जाता है, आराम मिलता है. इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग में आराम मिलेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग में रिलीफ मिलेगा. लैटरल बेंडिंग में भी पेन एनहांस होता है, मतलब एग्रावेट होता है.
दिस इज़ फ्रीबर्ग्स टेस्ट। फ्रीबर्ग्स टेस्ट है, इसमें पेशेंट का ये फोर्सिबली इसको इंटरनल रोटेशन करते हैं, ये पैर को फ्लेक्स करके इंटरनल रोटेट करते हैं पैसिवली। तो उससे क्या होता है कि पेन बटक एरिया में बढ़ेगा एंड दिस विल सजेस्ट अबाउट पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। फेयर्स टेस्ट भी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए है, इसमें पूरा ऐसे रोटेट करके एक दूसरी साइड में ले जाते हैं। So we can have an algorithm of low back pain, how to diagnose, how to approach low back pain, whether back pain is more or leg pain is more। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बैक पेन ज़्यादा है लेग पेन से कि लेग पेन ज़्यादा है बैक पेन से। अगर बैक पेन ज़्यादा है तो वेदर इट इज़ एक्सियल और पैरामीडियन। एक्सियल है एग्रावेटेड बाय सिटिंग, तो IDD इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन, बायलेटरल SI जॉइंट, बायलेटरल पायरिफॉर्मिस, वर्टिब्रल फ्रैक्चर, इंटरस्पाइनस लिगामेंट पेन और कॉक्सिडाइनिया, ये हो सकता है। अगर रिलीव्ड बाय सिटिंग है तो फैसेट जॉइंट पेन, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस जैसे मैंने बताया, पेशेंट जब वॉक करता है तो सीवियर क्लॉडिकेशन होता है, बैठते ही उसको आराम मिल जाता है, 5 मिनट के अंदर आराम, बिल्कुल बोलता है अब कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट है। ये बहुत टिपिकल हिस्ट्री है, इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं कि साहब हम थोड़ा देर आधा किलोमीटर चलते हैं तो एकदम लगता है पैर फट जाएगा, चल नहीं सकते, लगता है झंझनाने लगता है, और फिर बैठते हैं तुरंत आराम मिल जाता है। तो दैट इज़ लंबर कैनाल स्टेनोसिस। देन पारामीडियन अगर है, ये पाल्पेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं पारामीडियन अगर टेंडरनेस है कहीं तो हम आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि अब उसमें एग्रावेटेड बाय सिटिंग, रिलीव्ड बाय सिटिंग, फिर 2 क्लास है, यूनिलैटरल SI जॉइंट, यूनिलैटरल पायरिफॉर्मिस, MPS ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम। MPS मतलब मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। कभी कभी क्वाड्रेटस लंबोरम में मायोफेशियल, जो उसका फेशिया और मसल दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू मेनी कॉजेज, फिर वो अलग टॉपिक है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। देन रिलीव्ड बाय सिटिंग, यूनिलैटरल फैसेट जॉइंट, MPS ऑफ आइलियोसॉस, इसमें सिटिंग पे आराम मिल जाता है। फिर अगर लेग पेन इज मोर देन बैक पेन, वेदर इट इज़ ग्लोबल और पैची। ग्लोबल है, पूरा वेग चारों तरफ हर तरफ पेन हो रहा है, कोई लोकलाइज नहीं कर सकता है, या पैची है, बोलेगा अच्छा जांघ के आगे वाले हिस्से में, जांघ के पीछे वाले हिस्से में, ऐसे पेशेंट हिस्ट्री देगा। तो इसमें अगर ग्लोबल है तो CRPS और वेस्कुलर पेन हो सकता है। CRPS मतलब chronic regional pain syndrome. This is another condition of, this is a full topic. Chronic regional pain syndrome is due to sympathetic overactivity, sympathetically mediated, और इसके लिए हम अलग वो फिर वो ट्रीटमेंट है उसका अलग क्लास है। तो CRPS हो सकता है, वस्कुलर पेन हो सकता है, कोई भी इस्चेमिक पेन हो सकता है उस एरिया में, वस्कुलर कोई भी रीजन से। और पैची है अगर तो फिर उसमें देखते हैं डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन डर्माटोमल है। एक डेफिनेट डर्माटोम बता रहा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये रेडिकुलोपैथी है, डायबिटिक रेडिकुलोपैथी हो सकता है कहीं कोई डिस्क नहीं है लेकिन रेडिकुलोपैथी है, तो दैट मे बी ड्यू टू डायबिटीज़, और मे बी हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर का भी बहुत टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक नर्व के अलॉन्ग, आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन डर्माटोमल इज डज नॉट फॉलो अ नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रेफर्ड पेन फ्रॉम MPS, फैसेट जॉइंट, SI जॉइंट, एंट्रापेन न्यूरोपैथी। हाँ, अनदर थिंग इज मेराल्जिया पैरास्थेटिका। मेराल्जिया पैरास्थेटिका मतलब ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो निकलती है यहाँ से और थाई के पूरा क्यूटेनियस को सप्लाई करती है, तो वो कई बार ट्रैप हो जाती है। आप टाइट ड्रेस पहन रहे हैं, पैंट टाइट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, लंबे टाइम तक पहन रहे हैं, उससे भी कई बार होता है यहाँ कंप्रेस होते होते इंग्वाइनल कैनाल पे, और मेराल्जिया पैरास्थेटिका होता है। पेशेंट विल टिपिकली कंप्लेन पैरास्थीसिया एंड पेन अलॉन्ग द लैटरल बॉर्डर ऑफ थाई, और आप डायग्नोसिस करेंगे कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो लैटरल क्यूटेनियस, ये मेराल्जिया पैरास्थेटिका इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन, और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान है। आप कुछ नहीं करिए, लोकल इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए इंग्वाइनल कैनाल के अराउंड जहाँ से वो पास करता है, ठीक करीब करीब मिडिल से 1 सेंटीमीटर लेटरल, उसको लोकल जाइलोकेन इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, उतने से रिलीव हो जाता है। ठीक है। Now comes the management, how to manage a chronic low back pain. There are 3 headings. Conservative, let us first see the algorithm. This is the algorithm of management. It may be conservative, interventional or surgical. 3 headings. Conservative में pharmacotherapy, psychotherapy and non-pharmacotherapy, exercise and other physical therapy. इंटरवेंशन में इंटरवेंशंस जो हम करते हैं, जो पेन स्पेशलिस्ट जनरली करते हैं, और सर्जिकल न्यूरोसर्जन करते हैं। तो लेट्स अस सी द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फर्स्ट।
अब इसमें हम हिस्ट्री से ये तो एक्सप्लोर कर ही चुके हैं कि नोसिसेप्टिव है या न्यूरोपैथिक है। नोसिसेप्टिव के लिए हमारे पास NSAID, पैरासीटामोल, ओपियोइड्स आर अवेलेबल। वी कैन यूज़ one of them or a combination of any two or a combination of all the three. Sometimes all the three are required: NSAID, paracetamol, and some opioid analog. Then neuropathic pain, we have a number of drugs like pregabalin, gabapentin, amitriptyline, nortriptyline, duloxetine, venlafaxine. A number of drugs are there. Then psychological intervention. Actually पेन का डेफिनेशन ही है कि ये नोसिसेप्टिव स्टिमुलस की वजह से आपका साइकोलॉजिकली एंड सोमैटिकली दोनों तरह का होता है ये। आप उसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अ क्रोनिक पेन पेशेंट देयर इज लो सेल्फ स्टीम, यूजुअली एसोसिएटेड डिप्रेशन और एंग्जाइटी, काम करने में मन नहीं लगता है, सोता रहेगा, इरिटेबल रहेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ एंड प्रॉपर काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड इफ डिप्रेशन इज एसोसिएटेड, डिप्रेशन शुड बी ट्रीटेड। एंड देन फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपी में जनरली हम एक मोटा मोटा तौर पे ऐसे एज ए पेन स्पेशलिस्ट हम भुजंग आसन बताते हैं, मरकट आसन बताते हैं। मरकट आसन इज़ वेरी यूजफुल फॉर फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। मरकट मतलब ऐसे जो साइड टू साइड रोल करते हैं वो, और भुजंग आसन एक्सटेंशन। तो और बाकी वैसे यू हैव टू फाइंड आउट द पेन जनरेटर एंड देन अकॉर्डिंगली डिज़ाइन व्हाट एक्सरसाइज, व्हाट मसल्स ग्रुप शुड बी स्ट्रेंथन एंड what can be done. That is the topic of physiotherapists. Pharmacological management. Pharmacology में हमारे पास ये हैं, ये basket of drugs हैं. International Association for Study of Pain, this recommends this dose of the drugs. Gabapentin is 100 to 300 mg at bedtime or TID. We start from one tablet OD bedtime, then we can increase the dose by titration. The maximum dose is 3600 mg per day. Trial duration is 3 to 8 weeks plus 2 weeks at maximum dose. 3 to 8 weeks हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और मैक्सिमम डोज पे जाके 2 weeks कर लिया। अगर उसके बाद भी नहीं रिलीव हुआ then we can go for intervention. Then pregabalin again 50 mg TID, then increasing to 300 mg, maximum is 600 mg, 4 weeks trial. ऐसे ही SNRI, सेलेक्टिव नॉर एड्रेनलिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। SNRI का रोल ये है, डुलोक्सेटिन और वेनलाफेक्सिन दो ड्रग्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। डुलोक्सेटिन इज़ वेरी कॉमनली यूज, वेनलाफेक्सिन कम यूज़ होता है। SNRI इसमें जैसा हमने बताया कि क्रोनिक पेन में देयर इज सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो इवन इफ देयर इज नो स्टिमुलस, द स्टिमुलस इज नो मोर, the pathway keeps on carrying the pain sensation. तो उस पाथवे को ब्रेक करना है हमें। उस पाथवे को ब्रेक करने के लिए हम ये जो नॉरेलिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हैं, ये क्या करते हैं कि जो आपका जो पाथवे, पेन पाथवे जो अल्टरनेटिव है जिसमें एनकेफेलिन्स वगैरह वाले काम करते हैं, जैसे ओपियोइड काम करते हैं जिस मैकेनिज्म से, तो उस पाथवे में ये क्या करते हैं कि नॉरेलिन रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे। नॉरेलिन ज़्यादा देर तक रिसेप्टर्स पे रहेगा तो ये पाथवे ब्रेक होता है। लाइक ट्रामाडोल भी हम यूज़ करते हैं और ये SNRI यूज़ करते हैं। SSRI भी एक क्लास होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। देन TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट डोज बहुत ज़्यादा होता है इसका, बहुत लो डोज में हम TCA को यूज़ करते हैं। इसमें इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, ये सब जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं लो डोज में अगर यूज़ करते हैं 25 mg एट बेड टाइम, तो इससे काफ़ी हद तक ये उस पाथवे को ब्रेक करता है और सेंसिटाइजेशन, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन को, एलोडाइनिया को कम करता है। पेन परसेप्शन इज मॉड्यूलेटेड एक्चुअली। पेन परसेप्शन जो आपका एग्रावेटेड है उसको कम करेगा। देन नेक्स्ट इज इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। व्हेन द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल्स वी कैन गो फॉर इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में फिर पेन जनरेटर आपने डिसाइड कर लिया, फिर उस हिसाब से इसमें सियाम और USG दो टूल्स हैं हमारे पास, उनसे हम देख के बहुत कुछ ब्लाइंडली करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ हम लोग अंडरविजन कर सकते हैं। सियाम गाइडेड इंट्रा-आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट स्टेरॉइड इंजेक्शन। फैसेट जॉइंट में उसका एक फ़ोटो आपको, हाँ, सियाम में देखते हैं हम फ्लोरोस्कोपी में, और सीधा जॉइंट हम देख सकते हैं, फैसेट जॉइंट देख सकते हैं। उसमें एक वो लगाते हैं आयोहेक्सॉल, ओमनीपैक जो कंट्रास्ट एजेंट आता है,
कंट्रास्ट लगाते हैं तो एकदम से डेलिनेट हो जाता है, वो हमको वो दिखने लगता है जॉइंट. देन वी कैन इंजेक्ट द स्टीरॉयड डिपोमेड्रॉल, जो लॉन्ग एक्टिंग डिपोमेड्रॉल या कैनाकॉट उस टाइप के जो स्टीरॉयड्स हैं वो लगा सकते हैं. दूसरा, उसके बाद भी अगर नहीं रिलीव होता है, बहुत ज़्यादा है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ मीडियल ब्रांच ऑफ डॉर्सल रैमस. मीडियल ब्रांच ऑफ डॉर्सल रैमस ही उसकी नर्व सप्लाई है जॉइंट की, तो इसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से एब्लेट कर देते हैं. एब्लेट करते हैं तो क्या करते हैं उसमें कि जो आपका शीथ है, नर्व का शीथ है, वो इंटैक्ट रहता है. अंदर का एक्सन जो है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, लेकिन फिर वो 2 साल 3 साल में रीजनरेट कर जाते हैं. ये कंसर्न रहता है, कोई भी पूछता है अरे साहब नर्व डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर वो तो पेन पता ही नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है, वो रीजनरेट होता है फिर. और दिस कैन प्रोवाइड रिलीफ फॉर 2 to 3 ईयर्स. 2-3 ईयर्स के बाद कभी कभी रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं भी पड़ सकती है. अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो गया, अवेयर हो गया उसके लिए, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है. देन सैक्रोइलियक जॉइंट पेन, अगेन दिस इज़ वेरी यूजफुल, वेरी पेनफुल कंडीशन, एंड दिस इंजेक्शन इज़ वेरी यूजफुल. ख़त्म हो गया, अच्छा हिल गया, हाँ ठीक 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 ठीक. सो अगेन सैक्रोइलियक जॉइंट, this is very painful condition, and we can again inject steroid inside. इसका एक फोटो भी है. This is the sacroiliitis. ये sacroiliac joint है, shallow joint. This is the needle, and we have injected the contrast medium, and this is showing the whole joint space. Needle यहीं तक है, needle is up to this point only, and this is the joint. So we can go for steroid injection directly. Then comes discogenic pain. इंटरनल डिजनरेशन या डिसरप्शन जो भी है, उसमें डिस्कोजेनिक पेन जो होता है टिपिकली ये रेडिएट नहीं होता है लेग में. दिस इज लोकलाइज टू द लोअर बैक एरिया, एंड वेरी एक्चुअली दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट होता है, स्टिफनेस रहेगा, कभी कभी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन अगर कुछ काम कर लिया, खड़े रह गए, बैठ गए, तो उसमें पेन होता है. तो इसमें ये बहुत कॉमन है, यंग एज में बहुत कॉमन है, एंड इट्स वेरी इजी टू ट्रीट. इसमें तो नॉर्मली रिकमेंडेड तो है सियाम गाइडेड एपिड्यूरल इंजेक्शन. हम लोग बीइंग एनेस्थेटिस्ट वी आर वेरी यूज टू ब्लाइंड एपिड्यूरल इंजेक्शंस, एंड वी डू दैट. एपिड्यूरल में हम स्टीरॉयड और थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड मिक्स करते हैं उसमें. हाइलुरोनिक एसिड ये करता है कि एडहेजन्स को ब्रेक करता है. दिस इज कॉल्ड एपिड्यूरल एडहेजियोलाइसिस. एडहेजन्स को ब्रेक करेगा. रिपीटेड वो इन्फ्लेमेशन होने से, माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे एडहेजन्स रहते हैं, तो उसको हम हाइलुरोनिक एसिड से ब्रेक कर सकते हैं, और स्टीरॉयड से नर्व का जो भी एडिमा है या जो भी आसपास का एडिमा वो ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड, एंड वी आर डूइंग इट फ्रिक्वेंटली. देन RF ablation may be required, Remy communicants. That is usually not required, but in severe cases we can do. Then radicular pain due to PIVD, prolapse intervertebral disc. The gold standard is transforaminal epidural steroid injection, TFESI. इसका एक फोटो है ये. We can see the nerve root exiting from this intervertebral foramen. We can this is the needle. This is the needle from lateral side. This is the needle, and we have injected the contrast medium. This is delineating the exiting nerve root. ये और नीचे तक आ सकता है, इधर तक आएगा. एक बार आपने देख लिया कि हाँ वो नर्व रूट के अलॉन्ग स्प्रेड कर गया, तो वहीं पे आप इस नर्व के शीथ के जस्ट ऊपर यहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हैं. ये सियाम में हम देख सकते हैं, जो स्कॉटिश डॉग का एक फ़ोटो बनता है, तो स्कॉटिश डॉग का आई के अपर क्वाड्रेंट में आप इंजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ ट्रांसफोरामिनल steroid injection. This is very effective. Even I have taken this injection and very relieved. No pain is there. I took it 2-3 years back in Delhi. Dr. Dureja injected, and I'm pain free now. Then percutaneous discectomy, एक थोड़ा advanced है ये. We are not doing here, but people in Delhi, Bombay, they are doing. इसमें एक नीडल आती है लंबी, एपिड्यूरल जैसी ही थिकनेस की, और बेवेल्ड होती है. वो ड्रिल मशीन की तरह टिप पे बेवेल्ड होती है. ऊपर हेड पे बैटरी रहती है, ऐसे यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड है. आप स्विच ऑन करेंगे वो रोटेट करेगा हाई स्पीड में.
तो ऐसे ही सियाम में देख के और कंट्रास्ट लगा के डिस्क तक पहुंचते हैं, एकदम डिस्क बल्ज पे जाके टच करते हैं उसको, और उसके बाद बैटरी ऑन करते हैं, वो रोटेट होकर उसको तोड़ देता है, ब्रेक करता है। फिर साइड से एक चैनल है, आप NS डाल के उसे वॉश कर सकते हैं, सक कर सकते हैं, फिर निकल आते हैं। तो डिस्केक्टमी है ये। इसमें फिर जो न्यूरोसर्जन खोल के लेमिनेक्टमी करते हैं, डिस्केक्टमी करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे भी काम चल जाता है अगर बहुत सीवियर नहीं है तो। देन कम्स CRPS. CRPS, as I told, it is a sympathetically mediated chronic regional pain syndrome and it requires lumbar sympathetic block. लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक जैसे बर्जस डिजीज़ में करते हैं उसी टाइप से इसमें भी कर देते हैं। बर्जस डिजीज़ में तो सर्जिकल करते हैं, इसमें हम मेडिकली कर सकते हैं, उसमें फेनॉल डाल के उसको स्क्लेरोज कर देते हैं। एंड देन इन सीवियर केसेस स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं, वो 15 to 20 lakhs के हैं, और उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं और वो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देता रहता है। उससे आपका जो पेन का जो पाथवे है उसको गेटिंग मैकेनिज्म से वो ब्लॉक कर देता है। ये सब हो ही गया। एक वीडियो हमने डाउनलोड किया था यूट्यूब से, लेकिन ये इसमें प्ले नहीं हो रहा है किसी कारण से। वो ट्रांसफॉर्मिनल का पूरा प्रोसीजर था। तो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन रिकॉर्डिंग एंड दिस लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड ऑल। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर कंजर्वेटिव और हमारा इंटरवेंशन दोनों फेल हो गया तब क्या करेंगे? तो सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। रेड फ्लैग साइन अगर है, इफ़ देर इज़ एनी वन रेड फ्लैग साइन, it warrants surgical management in most of the cases, or failure of the intervention and persisting pain. Then what are red flag signs? Trauma है तो इसमें पेन स्पेशलिस्ट कुछ नहीं करेगा, वो सर्जन का केस है। ट्यूमर है, सर्जन का केस है। इन्फेक्शन है तो इंटरवीन नहीं करना है, या तो इन्फेक्शन को आप ट्रीट करिए, नहीं तो फिर सर्जन के पास भेजिए। फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट, ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस अगर है तो दैट इज़ एन अर्जेंट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। और अगर मोटर पावर डेफिसिट है, अगेन इट इज़ इंडिकेशन फॉर सर्जरी। देन वी शुड हैव सम टेक होम मैसेजेस फॉर टुडे। देयर आर मेनी myths related with low back pain. Let us see what is the myth and what are the facts. MRI of LS spine is a must whenever there is patient of acute low back pain in clinic. No, this is not the fact. Actually, MRI of LS spine is not needed in acute low back pain in the absence of any red flag. अगर रेड फ्लैग है तो करना है। 70 to 90% of acute low back pains without red flags recover within 2 to 4 weeks with conservative treatment. Another myth, spondylosis is the most common cause of low back pain. Actually, spondylosis is not a clinical but radiological term, and it merely indicates degenerative changes in any part of the spine. The most common cause of low back pain is, in elderly patients, it is facet joint arthropathy, as I told earlier, and degenerative osteoarthropathy. And middle and young age, it is internal disc disruption. Third myth, complete bed rest on hard surface is helpful and is indicated until the patient is pain free. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बैक पेन है, हार्ड बेड पे सो, लंबे टाइम तक सो, 6 से 8 हफ्ता लगेगा तभी ठीक होगा। नो, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। बेड रेस्ट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर 2 to 3 days। 2 to 3 days इसलिए ताकि नर्व पे अगर इरिटेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वो रिलीव हो जाए, थोड़ा सा जो मसल स्पाज्म है वो रिलीव हो जाए। उसके बाद बेड रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। एंड पेशेंट इज एनकरेज टू स्टे एक्टिव विथ सर्टेन प्रिकॉशंस के साथ एक्टिव रहना है। फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है, ये सब, लेकिन एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है। चलेंगे तभी उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, रेस्ट करेंगे न्यूट्रिशन और कंप्रोमाइज़ होगा और ज़्यादा डिजनरेट करेगा। So prolonged bed rest may cause muscle wasting and may actually be harmful. मसल वेस्टिंग का ये है कि अगर एक सप्ताह आपने बेड रेस्ट कर लिया तो योर मसल पावर डिक्रीजेज बाई अबाउट 10%। एक सप्ताह में 10%, अगर 4 सप्ताह कर लिया तो 40%। सी हाउ हार्मफुल इट इज। सो बेड रेस्ट इज नो मोर रिकमेंडेड। देन lumbosacral belt helps in reducing the pain. This is also no more recommended. Lumbosacral belt is, it does not improve the prognosis, rather it may lead to weakness of the paraspinal muscles and do more harm than benefit. हम लोग सजेस्ट करते हैं अगर बाइक राइड करना है 1 घंटा आधा घंटा लगातार चलाना है, खाली उस टाइम बेल्ट लगाओ। लेकिन एक्सरसाइज अगर कर रहे हो रेगुलर तो, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बेल्ट नहीं लगाना है। एक्सरसाइज नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है।
लो बैक पेन के पेशेंट को एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना है कि पेन ठीक होगा, हेल्दी पेशेंट को भी एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि पेन ना हो. सो एक्सरसाइज इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट्स ए प्रिवेंटिव मेजर. ऑलवेज सिट अप स्ट्रेट टू अवॉइड बैक पेन. बताते हैं सीधा बैठो. बहुत सीधा अगर एक पोस्चर में बहुत देर तक बैठेंगे, अगेन दैट विल कॉज अ स्ट्रेन ऑन द बैक. सो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर एवरी 20-30 minutes इज recommended. Then surgery is indicated whenever there is disc bulge or prolapse in the MRI. ज़्यादातर न्यूरोसर्जन्स कहते हैं अरे बल्ज है सर्जरी करना पड़ेगा. कोई अगर पूछ भी दिया न्यूरोसर्जन से कि एक वो सुई लगाते हैं डॉक्टर साहब, वो नहीं वो सब बेकार है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. तो एक्चुअली सर्जरी छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं. 2 लाख 4 लाख रुपया भी लगता है पेशेंट का, और उसके बाद भी आप गारंटी तो दे नहीं सकते. आपका L4 L5 अपने सर्जरी कर दी, वो फिर बाद में ऐसे पेशेंट्स को टेंडेंसी होती है मल्टीपल लेवल्स पे होगा, फिर L3 L4 पे हो गया, कितनी बार आप स्पाइन खोलते रहेंगे. उससे तो अच्छा इंटरवेंशन कर लें. और हमने कई ऐसे पेशेंट्स को लगाया है इंजेक्शन जो आके खाली इतना बोले डॉक्टर साहब अगले 23 तारीख को हमारा SGPGI में फिक्स है, सर्जरी होना है, पैसे की भी थोड़ी दिक्कत है, इंतजाम नहीं हो पाया, कुछ ऐसा कर दीजिए 2-3 महीना टाइम मिल जाए. हमने उनको लगाया, ये बोला कि भाई देखिए सर्जरी आपका इंडिकेटेड तो है, अगर SGPGI में बोले हैं तो ऐसे ही नहीं बोले हैं, और लेकिन आपको ये लगा के देखिए, ठीक है टाइम मिल जाएगा थोड़ा. और वो आज तक आते हैं बुलेट से हमारे पास, रिटायर्ड दरोगा जी हैं एक, और कहते हैं साहब कोई ज़रूरत नहीं है ये सर्जरी, पता नहीं क्यों कह रहे थे. हम आज भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बुलेट चलाते हैं, गार्ड बैठ के गमला अभी 50 गमला पेंट करके आए अपने हाथ से. सो समटाइम्स द रिजल्ट इज सो ड्रास्टिक, समटाइम्स नॉट ऑलवेज. So surgery is indicated only when there are red flags or other serious disorders like tumor. This is all about the basics. Thank you for patient hearing. So I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Santosh Tiwari sir for delivering such an insightful and engaging talk. Your expertise, clarity and passion for the topic were truly remarkable and left a lasting impression on everyone present over here. Thank you for sharing your valuable knowledge with us. It was truly enlightening. बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे लगता है इस सेशन का सबसे अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है. आपका पैशन वो शो करता है, ज़ील शो करता है. हाँ, थैंक यू एवरीवन. सो बहुत ही कॉमन, हाँ बिल्कुल. तो अब हम लोग क्विज की तरफ मूव करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Faber's test is used to elicit sacroiliitis, PIVD, फ्रैक्चर पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी. आपको इधर से हैंड्स रेज करने हैं. जस्ट यू रेज योर हैंड फर्स्ट. डॉक्टर अंजू जैन मैम, योर आंसर. रॉन्ग है. नो रॉन्ग. इट इज अ रॉन्ग आंसर. याद करिए ये वाला प्रोसेस है, दिस और ऐसे प्रेस करना. नहीं, नेक्स्ट. हाँ सर प्लीज. ए सैक्रोइलिटिस इज द राइट आंसर. सैक्रोइलिटिस इज द राइट आंसर. अ बिग अप्लॉज फॉर सर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड. RF ablation of medial branch of dorsal ramus is used to treat medial branch of dorsal ramus. उसका RF ablation कब करते हैं? PIVD, facet joint arthropathy, lumbar canal stenosis, pyriformis syndrome. Please, Dr. Ratnesh, please. Lumbar canal stenosis. No, wrong answer. That is the Dr. Ashok. lumbar canal stenosis. No, that's not the right answer. Sir, Dr. Agrawal. No, sir. No, that's also. We have left with the two options. Dr. Shailendra. Facet joint arthropathy. Yes. Facet joint arthropathy. This is the right answer. That's the right answer. Big applause for Dr. Shailendra. Facet joint का nerve supply actual है middle branch of Excellent. dorsal ramus. So, moving Next towards question. the next question. From this side. Low back pain is said to be chronic if it persists for more than. Raise your hand. Dr. Anju Jain. Dr. Anju Jain is the right answer. Yeah. Dr. Anju Jain has given the right answer. Right answer. Big applause. 12 weeks. 12 weeks is the right answer. So next question from Next this question side. from this side. Venlafaxine is SSRI, that is selective serotonin reuptake inhibitor, SNRI, selective noradrenaline reuptake inhibitor, TCA, tricyclic antidepressant, or calcium channel blocker. Dr. Ashok. SNRI, right. SNRI is the right answer. A big applause for Dr. Ashok. Which of the following is not a red flag sign for low back pain? Not a red flag sign. Infection, urinary retention, motor weakness, none of the above. Dr. Shiv Shankar Shai. D, none of the above. Right None answer. of the above is the right answer. Dr. Shiv Shankar Shai. ये तीनों रेड फ्लैग साइन हैं.
CRPS can be treated by lumbar sympathetic block, spinal cord stimulation, both, none of the above. Dr. Agrawal? Or spinal cord stimulation, both is the right answer. Both are correct. Dr. Ratnesh? लंबर कैनाल स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन भी सीवियर केसेस में करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर इम्प्लांट कर देते हैं अंदर. पेन पैच आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ? या पेन पैच इज वेरी यूजफुल फॉर हर्पीज जोस्टर. उसमें कई पैचेस हैं. लिग्नोकेन पैच है, दैट इज वेरी यूजफुल, वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट फॉर हर्पीज जोस्टर, जो डर्मेटोम है, मतलब लगाना चाहिए? जो अधेड़ी जो बोलते हैं, जो हर्पीज जोस्टर होता है, उसके जस्ट साइड में लगा दीजिए आप. वहीं से धीरे धीरे वो रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो धीरे धीरे रिलीव करता है. किस नाम से आता है? लिग्नोकेन पैच? लिग्नोकेन पैच बहुत सारे नाम से आता है. डिक्लोप्लास्ट और ये ब्यूप्रोप्लास्ट पैच करके हाँ आता हाँ हाँ, लिग्नो पैच करके आता है. लिग्नो पैच. हाँ, जाइलो पैच, लिग्नो पैच, बहुत सारे नाम से आता है. डेली वंस वन पैच? हाँ, 24 आवर. दूसरा, हाउ मेनी पैचेस? हाउ लॉन्ग एंड हाउ मेनी पैचेस? अब हर्पीज जोस्टर तो सेल्फ रिग्रेसिंग है, जब तक रिग्रेस नहीं कर जाता है, रेमिट नहीं कर जाता है, तब तक लगाइए उसको. 10 दिन 15 दिन लग सकता है. डेली चेंज करना, 24 आवर्स. सम लॉन्ग एक्टिंग पैचेज आर ऑल्सो देयर, दैट इज नॉट इन जाइलोकेन, दैट इज इन ओपियोइड्स लाइक बुप्रेनॉर्फिन. बुप्रेनॉर्फिन लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये सब 1 हफ्ते तक भी चलते हैं. तो हाँ, उसके पैचेस तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन न्यूरोपैथिक पेन उसका रह जाता है. पोस्ट हॉस्पिटल न्यूरोलजिया. यस. न्यूरोपैथिक पेन रह जाता है. न्यूरोपैथिक पेन तो लॉन्ग. तो न्यूरोपैथिक पेन के लिए फिर आपको वही न्यूरोपैथिक जो ड्रग्स हैं उनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ दिन तक चलाना पड़ेगा. गाबापेंटीन, प्रेगाबेलिन, SNRI, SSRI, ये सब आपको सेलेक्ट करना है. देन वी कैन गो फॉर प्रोलोथेरेपी. प्रोलोथेरेपी एक टर्म है. प्रोलोथेरेपी में आप नर्व डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ इस नर्व में हो रहा है, तो उस नर्व का पाथ आप देखिए और उसके अराउंड आप सिंपली डेक्सट्रोज सोल्यूशन 15% डेक्सट्रोज वो लीजिए और उसके चारों तरफ इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए 8-10 जगह पे. प्रोलोथेरेपी, इससे आराम मिलता है. इससे कई बार आराम मिलता है. डेक्सट्रोज से आराम मिलता है, इवन जाइलोकेन से आराम मिलता है. जैसे हमने बताया कि इसके लिए मिरल्जिया पैरास्थेटिका में एक पेशेंट आया मेरे पास, उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था 2 साल 3 साल पहले, और बोला साहब उसके 6 महीने बाद से मुझे ये सारा दर्द होता है एकदम, जो ये थाई के लेटरल साइड, और रात को नींद टूट जाती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है. तो सब कुछ किया हमने, MRI करवा के सब देखा, सब ठीक था. लास्ट में यही समझ में आया कि मिरल्जिया पैरास्थेटिका है ये. उसको जो इंग्वानल जो हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उसके स्कार के अराउंड मैंने कई जगह जाइलोकेन इंजेक्ट कर दिया. जाइलोकेन इंजेक्ट किया, एक सेशन, उसे 3-4 हफ्ते तक रिलीव रहा, फिर दोबारा आ गया. बोला साहब ठीक तो था, फिर से शुरू हो गया. तो हमने इस बार डेक्सट्रोज उसको लगाया और जाइलोकेन भी लगाया, दोनों लगाया. द पेशेंट इज़ फाइन सिंस 1 ईयर. नाउ देयर इज़ नो कंप्लेंट. वो संजोग से मेरे गांव का पेशेंट है, मैं गांव जाता हूँ, मिलता है, वो बताता. स्टेरॉयड का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है सर. स्टेरॉयड का रोल एक्चुअली वहाँ है जहाँ नर्व इडिमा ज़्यादा है. स्टेरॉयड भी दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड्स. अगर नर्व इडिमा आपको लगता है उसकी वजह से हो रहा है, तो वो इरिटेशन इडिमा को कम करता है. स्टेरॉयड एक्चुअली जो हम लोग नर्व रूट वगैरह में लगाते हैं, उसी का फ़ायदा ज़्यादा है. स्टेरॉइड यूज करते हैं सर? डिपोमेट्रोल, हाँ, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाँ, उसका डिपो. कितनी डोज? या वो भी लगा सकते हैं, कैनाकॉट. अच्छा. कैनाकॉट लगाते हैं 10 to 20 ml. 10 to 20 ml, 15% डेक्सट्रोज, 15% कम से कम. उसमें 25% डेक्सट्रोज जो आता है उसको हम डाइल्यूट करके 12.5 बनता है. अगर डबल डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा कम करेंगे तो अराउंड 15% आ जाता है. एटलीस्ट 15% होना चाहिए. हाँ, 15 to 20 ml. आप कई जगह 8-10 जगह पे थोड़ा थोड़ा 2-2 ml 1-1 ml करके इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए. दैट इज़ प्रोलोथेरेपी. उससे आराम मिलता है. इससे आराम सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें, जो आपका स्केपुलर, ये डॉर्सल स्केपुलर नर्व है, डॉर्सल स्केपुलर नहीं, क्या बोलते हैं, सुप्रास्पाइनस. हाँ, वो ट्रैप हो जाता है उसमें कई बार, सुप्रास्पाइनस मसल में. तो वहाँ पे हम डेक्सट्रोज इंजेक्ट कर देते हैं, आराम मिलता है. हाँ, इंट्रामस्कुलर, अराउंड द नर्व, बहुत दूर नहीं, अराउंड द नर्व के एकदम आसपास 1-2 मिलीमीटर के अंदर आप यहाँ से वहाँ तक ऐसे कर दीजिए. जनरली ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है. अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं नर्व को और उसके अराउंड दे सकते हैं. लॉन्ग लास्टिंग है. वही वो इंट्रैपमेंट ख़त्म हो जाता है. और जो भी न्यूरोपैथी है वो उसमें एक तरह से जो डिजनरेशंस हैं वो रिपेयर के प्रोसेस आ जाता है. ये इन्फ्लामेशन, हाँ, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ कॉज करेगा धीरे धीरे, और फिर वो ग्रोथ फैक्टर और वो सब चीज़ें रिलीज़ करके वो रिपेयर कर लेता है एक तरह से. प्रोलोथेरेपी का ये रोल है. डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए जी. सपोज फैसेट आर्थ्रोपैथी है, आपने इंजेक्शन लगा दिया, उसको रिलीफ हो गया, हाँ, तो उसको पेन के सेंसेशंस कम हो गए,
बट जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से फैसेट आर्थ्रोपैथी हुई है वो तो नहीं किया। फैसेट आर्थ्रोपैथी एक्चुअली डिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो उसको हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। उसमें हम ये लगाते हैं तो पेन सेंसेशन ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली वो इन्फ्लामेशन ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद उसको हेल्दी लाइफस्टाइल हम प्रमोट करेंगे, एक्सरसाइजेस बताएंगे, तो फिर ये डिजेनरेशन को थोड़ा हम स्लो कर सकते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज और मिडिल एज में होता है ये, तो उसको हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस हाँ मेंटेन करना है बस। ये था कि जो पेरी आर्थराइटिस शोल्डर होता है या नी की जो जी आर्थराइटिस होती जी है जी जी उसमें आपका इंजेक्शन कोई रोल है? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर ऑस्टियोआर्थरोटिक जो है, जो डिजेनरेटिव चेंज है नी का, एक्चुअली नी पेन के तो तमाम कॉजेज़ हैं। कुछ ACL PCL टीयर है, MCL टीयर है, LCL टीयर है, वो मेनिस्कल टीयर है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो वो सर्जरी से जाएगा या इसमें रिजनरेटिव थेरेपी करते हैं। उसमें अगर पार्शियल टीयर है तो रिजनरेटिव थेरेपी होती है। रिजनरेटिव थेरेपी में आप PRP लगा सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या आजकल और नया थोड़ा आ गया है ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, GFC। ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट भी वही है, प्लाज्मा को ही और ब्रेक कर देता है वो हाई स्पीड में करने से। सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई स्पीड में, तो ऑटोलोगस ब्लड होता है, पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, उसको हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसका एक स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें वो सेपरेट हो जाता है। और ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट लगाते हैं तो काफ़ी हद तक वो रिपेयर करता है अगर छोटा मोटा टीयर है तो। अगर ऑस्टियोआर्थरोटिक चेंजेस जो डिजेनरेटिव वाला होता है उसमें भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, कार्टिलेज अभी बचा हुआ है, थोड़ा घिसा है, थोड़ा बचा है, अभी घिसने के प्रोसेस में है, तो उसमें GFC और PRP काम करता है। दिस इज़ रिजनरेटिव थेरेपी। रिजनरेशन को हम प्रमोट करते हैं, वो कार्टिलेज को रिपेयर करता है काफ़ी हद तक और उससे आराम मिलता है। लेकिन ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो गया अगर, तो उसमें बहुत आराम नहीं मिलेगा। उसमें तो हम लोग जनरली पेशेंट एक्चुअली लेट स्टेज में ही आता है, तो उसमें हम स्टीरॉयड लगाते हैं और फिर उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, और कोई तरीका नहीं। आर्थराइटिस शोल्डर के लिए भी यही है? पेराथाइड शोल्डर में हम वो लगा सकते हैं, डिपोमेड्रोल लगा सकते हैं। कितना लगाते हैं? उसमें 2 to 4 ml, 2 to 4 ml। नेक कॉलर जो लगाने के लिए नेक कॉलर का भी हाँ, नेक कॉलर में भी सर वही है एक्चुअली। नेक कॉलर शॉर्ट टाइम के लिए आप कर सकते हैं, अगर सीवियर है, मसल स्पाज्म है, तो नेक कॉलर का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो मसल के स्पाज्म को कम कर दे। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक आप लगाएंगे तो मसल्स को वो फिर डिजनरेट कराएगा, वो वीक कराएगा, मसल वीकनेस कॉज करेगा और फिर आपका और एग्रेवेट होगा। ट्रैक्शन तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ट्रैक्शन तो मना करते हैं सर। इसमें भी सर्वाइकल एरिया में भी एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, आई एम नॉट डूइंग हियर एक्चुअली, वो थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा रिस्की है, तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट पीपल आर डूइंग फ्रिक्वेंटली। वो सियाम गाइडेड एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं उसमें, और उसमें रिलीफ मिलता है। लंबर बेल्ट के बारे में? लंबर बेल्ट भी वही है, मसल, ये पारास्पाइनल मसल्स को वीक करेगा और वीक करके फिर और आपका वो प्रॉब्लम बढ़ाएगा। हाँ, तो इसलिए लंबर बेल्ट हम ऐसे ही रेकमेंड करते हैं कि भाई अगर लगाना ही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो दिन में 1-2 घंटा लगाओ, बाकी टाइम मत लगाओ। कहीं मोटरसाइकिल से जाना है, गाड़ी ड्राइव करना है तो लगा लो, बाकी टाइम मत लगाओ। और एक्सरसाइज ज़रूर करो, कि अगर 2 घंटा लगाने से भी थोड़ा सा वीक हुआ है मसल, तो फिर से टोन आ जाएगा उसमें एक्सरसाइज करने से। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा पेशेंट को ये बताता हूँ कि देखो, प्रॉब्लम आपका मैकेनिकल है, इसलिए ट्रीटमेंट भी मैकेनिकल ही होगा। आपको अपने मसल्स को टाइट करना है, उसके लिवर एक्शन से आपका हड्डी जो है वो सही जगह पे होल्ड करके रखेगा, इसलिए मसल को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है। और वो पेशेंट्स जो करते हैं वो रिलीफ रहता है उनको, जो नहीं करते हैं वो बार बार आते हैं। तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कोई रोल इन डीजेनरेटिव चेंजेस? यस सर, विटामिन D3 का रोल तो हर जगह है, वो तो सब जगह आपका जो भी कैल्शियम इनकॉर्पोरेट हो रहा है आपके बोन में, मसल्स में जितने। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आजकल जो प्रमोट कर रहे हैं, मैग्नीशियम मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, मसल एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल डिजनरेशन को स्लो करने के लिए। मैग्नीशियम का मल्टीपल जगहों हाँ, मैग्नीशियम का रोल भी है, और विटामिन D3 तो है ही जी। आपकी मैग्नीशियम का और भी बहुत सारा प्रिपरेशन है। ओरल ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो बैक में काम तो करेगा, लेकिन और बहुत सारा काम करेगा ना वो। उसके और भी और side सारे सिस्टम को, हाँ, यू विल रिक्वायर इन हाई डोज। और लो बैक में जैसे मैंने बताया कि डिस्क इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, तो वहाँ तक स्टेरॉइड कम पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। जब बहुत ज़्यादा न्यूवास्कुलराइजेशन होता है, क्रॉनिक पेन में न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाता है, तो उसके थ्रू जाएगा, थोड़ा बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे। इट शुड नॉट बी यूज, शुड बी डिस्करेज्ड। लोकल इज़ बेटर। ये हम जो वो भी डिपो प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं, डिपोमेड्रोल,
तो ये लॉन्ग टाइम धीरे धीरे रिलीज होता है। और इसका भी डोज है एक्चुअली, ये मैक्सिमम डोज ये 3 ग्राम है इन लाइफ टाइम, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लगाना है, तो इसका ध्यान रखना है। सर आपके एक्सपीरियंस में जो जितनी भी ये एसएनआरआईज और ये सब चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंस कौन से, जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, डोलाक्सिन? एक्चुअली ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है सर। किसी पेशेंट को एसएनआरआई बहुत अच्छा काम करता है, किसी को प्रीगैबलिन बहुत अच्छा काम करता है। कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं उसमें? कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ प्रीगैबलिन और उसका नॉर्ट्रिप्टिलिन। हाँ, मेगा न्यूरॉन एंटी, मेगा न्यूरॉन एंटी जो आता है इसका अरिस्टो का और सिरा का, हाँ हाँ वो ठीक काम करता है। गाबापिन एंटी भी करता है, गाबापेंटिन और नॉर्ट्रिप्टिलिन। लेकिन इसमें कोई कहना मुश्किल है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसको काम करेगा, तो उसमें ट्रायल एंड एरर ही है ऑलमोस्ट। So I think if there, हाँ सर कॉक्सीडायनिया के पेशेंट होते हैं, हाँ। पेशेंट यूजुअली स्लिप करके गिरता है डायरेक्ट, कॉक्सिस के टिप पे चोट लगती है जी। वो जो है क्योंकि बार बार उसको बैठना होता है साइकिल ड्राइव करने में, ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। कॉक्सीडायनिया में कॉर्डल एपिडुरल काम करता है, कॉर्डल एपिडुरल, लगाते हैं इंजेक्शन से। हाँ कॉर्डल एपिडुरल स्टेरॉयड अगर लगा देते हैं तो उससे आराम मिलता है कॉक्सीडायनिया में। और थोड़ा सा उसका कुशनिंग कर देते हैं, चेयर और जहाँ बैठ रहा है उसको बताते हैं कुशन, और थोड़ा सा साइड होके बैठे। तो काफ़ी ठीक हो जाता है। हाँ एक पॉस्चर में कुछ नहीं भी ठीक होते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते हैं। इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें वही कॉक्सीडायनिया में फिर वही कॉर्डल एपिडुरल हमारे पास तो वही है हमारा हथियार, और उसके अलावा फिर तब सर्जन्स देखेंगे। सर्जन्स फिर अपना उसमें बोन्स में कुछ कर पाए तो करें, बोन में क्या कर पाएंगे वही बात है। once again thanks for the talk. Thank you, sir. Very Thank you. engaging discussion. डॉक्टर Thank you. संतोष, बहुत अच्छा आपने Thank you, sir. कंसेप्ट बताए। हम लोगों का जो Practical. बेसिक्स प्रोलैप्स हो गया। जितने लो बैक एक होते हैं प्रोलैप्स से, तो आपने एकदम कंसेप्ट की वाइड रेंज वाइड रेंज है, देयर आर सो मेनी।